بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد، وہ شاگرد جنہوں نے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا پھر ہم تک پہنچایا، آج اسی جماعت کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، کسی بھی انسان کے ساتھ نفرت یا محبت کرنے کے لیے اس کا تعارف ضروری ہے. جب تک کسی انسان کے متعلق اس کا تعارف نہیں ہوتا تب تک اس کے ساتھ محبت یا نفرت کرنے کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. اور پھر تعارف بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا یا برا. اگر تعارف اچھا ہو جائے تو پھر محبت ہو جاتی ہے، اگر تعارف برا ہے تو پھر نفرت ہو جاتی ہے. جس قدر تعارف اچھا ہوگا اتنا زیادہ ہی محبت ہوگی. اگر تعارف برا ہے تو پھر نفرت ہوگی، اس کے ساتھ دشمنی ہوگی. اور آج ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور آج ہمیں صحابہ کرام کا تعارف کرایا بھی نہیں گیا. اگر صحابہ کرام کا تعارف کرایا گیا ہے تو غلط تعارف کرایا گیا ہے. تو اس لیے آج اگر کہیں پر صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا تعارف حاصل نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں. آج
हमें अपने बाप का तारुफ हासिल है, हमें पता है कि ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मुझे तालीम दी है, मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त की हैं, तो हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे बाप को गाली दे। अगर कोई बाप को गाली दे तो हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बाप का तारुफ हासिल है। तो सहाबा इकराम की जब भी गुस्ताखी होती है हमें कोई असर नहीं पड़ता, हम खामोश रहते हैं। उसकी असल वजह यह है कि हमें सहाबा इकराम का तारुफ हासिल नहीं है। सहाबा इकराम तो वो हैं जिनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। आज हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं इसलिए कि हमें जन्नत मिल जाए। फिर उसके बाद भी हमें ये पता नहीं होता कि पता नहीं हमें जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। सहाबा इकराम तो वो अजीम हस्तियां हैं जिनको दुनिया के अंदर ही रब ने जन्नत का टिकट दे दिया था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज अगर माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप का एहतराम है, तो वो भी सहाबा इकराम की वजह से है। आज अगर हम बाप का एहतराम करते हैं तो सहाबा इकराम की वजह से करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। तो इस मस्जिद के 3 दरवाजे हैं, जो दरमियान वाला दरवाज़ा है वो मेन दरवाज़ा है। तो फरमाया बाप भी जन्नत का मेन दरवाज़ा है। ये हदीस और ये बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने भी नहीं सुनी और न आपने सुनी है, बल्कि सहाबा ने सुनी है। सहाबा ने सुनकर हम तक ही पहुंचाई है। और आज अगर हम माँ की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, वो भी तो सहाबा इकराम की वजह से करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये हदीस भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा ने सुनी, फिर सहाबा ने हम तक ही पहुंचाया है। आज अगर माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप का एहतराम मौजूद है, तो सहाबा इकराम की वजह से है। आज अगर हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी सदका सहाबा इकराम का है। सहाबा इकराम ने ही हम तक दीन पहुंचाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ही उनके ईमान पर तबर्रा किया जाता है, उनके ईमान को मशकूक बनाने की कोशिश की जाती है। सहाबा इकराम का ईमान तो सबसे आला ईमान था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे सहाबा इकराम भी नमाज पढ़ रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले से थोड़ा आगे चले गए नमाज की हालत में, फिर पीछे आ गए। जब नमाज खत्म हुई तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने अजीब मंजर देखा, अजीब बात देखी है कि आप नमाज के अंदर मुसल्ले से आगे चले गए थे, फिर पीछे आ गए, ऐसी क्या बात हुई है? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नमाज के अंदर जन्नत दिखाई गई थी, मैंने जन्नत की सैर की, फिर मुझे जहन्नम दिखाई गई, मैंने जहन्नम को भी देखा है। तो सहाबा इकराम ने ये नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह जन्नत तो वो है कि जिसकी खुशबू हज़ारों मील दूर से आ जाती है, जहन्नम तो वो है कि उसकी तपिश भी बहुत दूर से आ जाती है। बल्कि सहाबा इकराम का ये अकीदा था, उनका ईमान इतना मजबूत था, वो यही समझते थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बात कह दें वो हक है, सच है, कायनात तो गलत हो सकती है लेकिन आका की जुबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। सहाबा का ईमान ऐसा ईमान था। तो इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, कि तुम मेरे सहाबा की इज्जत करो, ये तुम में से चुने हुए हैं, पसंदीदा हैं। सहाबा इकराम का ईमान ऐसा ईमान था जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने भी खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि तुम ईमान इस तरह लाओ जिस तरह सहाबा इकराम का ईमान था, तब जाकर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो ईमान सहाबा इकराम जैसा लाना पड़ेगा। और सहाबा इकराम तो ऐसे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे। वो न अपने बच्चों की फिक्र करते थे, न अपनी बीवियों की फिक्र होती थी, बस हर वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे।
आका अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत साद सुलैमी उनका नाम है, इनका काला रंग है। आका अलैहिस्सलाम के करीब आए और आके कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काला रंग है, मुझे जन्नत जाने से रोक लेगा, मैं जन्नत नहीं जा सकूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद तू कैसी बात कर रहा है, तू तो मोमिन है, तेरे अंदर तो ईमान है, जो मोमिन है वो तो जन्नत के अंदर जाएगा, तू जन्नत के अंदर जाएगा, तू कैसी बात कर रहा है। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई हाल भी नहीं पूछता, मेरा काला रंग है, मुझे कोई रिश्ता भी नहीं देता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद ऐसी बात नहीं है, तू जन्नत के अंदर जाएगा। और पूछा कि इस मजलिस के अंदर अमर बिन वहाब सख्फी मौजूद है। कहा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर बिन वहाब इस मजलिस के अंदर नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत साद को कि तुम जाओ अमर बिन वहाब के घर के अंदर और उसको कहो कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। हजरत साद सुलैमी वहाँ से रवाना हुए, अमर बिन वहाब के दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अमर बिन वहाब सख्फी दरवाजे के बाहर आए, पूछा कि खैरियत है, कैसे आना हुआ। तो हजरत साद सुलैमी कहने लगे कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। जब उसने इसके शक्ल देखी, चेहरा देखा और कहने लगा, पहले तू अपनी शक्ल तो देख, अपना चेहरा तो देख, मेरे पास कैसे मुंह उठा के आ गया, यहाँ से चला जा। पहले वो दुखों का मारा था, गरीब था, फिर परेशान होकर दोबारा आका अलैहिस्सलाम की खिदमत की तरफ रवाना हो गया। वो जाने लगा, पीछे हजरत अमर बिन वहाब अपने घर के अंदर आए। उस दौर के अंदर जो घर थे वो छोटे घर हुआ करते थे, बाहर दरवाजे पर जो बात होती थी अंदर से भी वो सुन लेते थे और अंदर से बेटी ये बात सुन रही थी। तो बाबा जब घर के अंदर है, पूछा, बाबा क्या बात है, बाहर कौन आया हुआ था। कहा, इसी तरह एक आदमी था, काले रंग का था, मुंह उठा के हमारे दरवाजे पे आ गया और आपका रिश्ता मांगने आया था और कह रहा था कि आका ने मुझे भेजा है। तो बेटी कहने लगी, बाबा आप उसकी तरफ ना देखते, उसका रंग तो काला है, लेकिन आप भेजने वाले की तो तरफ देखते कि भेजने वाला तो चौधरी का चांद है। बाबा अगर आपको इतराज हो सकता है, लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं कि आका अलैहिस्सलाम ने इसको भेज दिया है, कि आका अलैहिस्सलाम के ऊपर हमारी तो जानें कुर्बान है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम जो हुक्म कर दें फिर हम उसको टाल नहीं सकते। आप जाएं और उसको कहें, ठीक है, वो मेरा निकाह उसके साथ आप कर दें। हजरत अमर बिन वहाब भी अपने घर से बाहर निकले, आका अलैहिस्सलाम के खिदमत में पहुंच गए। उधर हजरत साद सुलैमी भी पहुंच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद सुलैमी से पूछा कि साद क्या बात है, तू पहले से भी ज्यादा परेशान लग रहा है। तो हजरत साद ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे ऐसे बात की और मुझे अपने घर से निकाल दिया। तो आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इधर हजरत अमर बिन वहाब आ गए और आके कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसी बात कर दी है, बस आप मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ कर दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया, 400 दिरहम हकमार मुकर्रर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को कहा कि साद तुम जाओ अपनी बेटी को अपनी बीवी को लेकर आओ। तो हजरत साद सुलैमी कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं 400 हकमार दिरहम कैसे दूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद तुम ऐसा करो, उस्मान के पास चले जाओ, अब्दुर्रहमान के पास चले जाओ, तलहा के पास चले जाओ, ये तुझे 200 दिरहम दे देंगे, 600 दिरहम हो जाएगा। 400 दिरहम तो हकमार दे देना, 200 दिरहम अपने घर का खर्चा चला लेना। ये उनके पास गए, उन्होंने 200 से ज़्यादा दिरहम दे दिए, 600 से भी ज़्यादा दिरहम इनके पास आ गए। अब इन्होंने सोचा कि पहले मैं अपनी बीवी को लेने नहीं जाता, पहले मैं बाजार के अंदर जाता हूँ ताकि कोई कपड़ा खरीद सकूँ, कोई बिस्तर खरीद लूँ। जब ये बाजार के अंदर पहुँचे, दुकान पर पहुँचे, एक कदम दुकान के अंदर है, एक बाहर है, और इधर से आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दे दी, कहा, ओ मोहम्मद के गुलामों, आका पर जान कुर्बान करने वालों, आका अलैहिस्सलाम ने
जिहाद का ऐलान किया है, रवाना हो जाओ। जब हजरत साद सुलैमी के कानों के अंदर ये आवाज़ पड़ी तो हजरत साद सुलैमी को अपने सारे जज्बात भूल गए, अपनी बीवी भूल गई, शादी भूल गई। अब उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठाई और कहने लगे, ऐ सातों आसमानों के रब, अब ये मेरा माल, ये मेरी ताकत, ये मेरा जज्बा, ये मेरा सारा पैसा वहां पर खर्च होगा जहां तू भी राजी होगा और तेरा महबूब भी राजी होगा। उस दुकान से वापस आए, सीधा गए, तलवार खरीदी और एक ढाल खरीद ली, एक घोड़ा खरीदा और उधर जिहाद की तरफ रवाना हो गए। अब इन्होंने सोचा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जिहाद के अंदर देखेंगे, मुझे वापस भेज देंगे और मुझे यही कहेंगे कि तेरी तो अभी शादी हुई है, तू वापस चला जा। हजरत साद सुलैमी ने अपना चेहरा छुपा लिया, सिर्फ आंखें ज़ाहिर हैं। अब जंग भी शुरू है, ये भी लड़ रहे हैं, चेहरा छुपा हुआ है। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि जंग के अंदर एक आदमी ऐसा है, चेहरा भी छुपाया हुआ है, बड़ी तेजी के साथ लड़ रहा है। सहाबा इकराम ने हजरत अली से पूछा कि अली बताओ ये आदमी कौन है जिसने चेहरा छुपाया हुआ है। हजरत अली कहने लगे, तुम छोड़ो, बस जो भी है अल्लाह ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा होगा। लड़ते लड़ते हजरत साद सुलैमी के घोड़े को तीर लगा, ये नीचे गिरे और जब उठने लगे अपने बाजू ऊपर किए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके काले बाजू देख लिए और पूछा कि अंत साद, तू साद है? कहा जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साद हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साद तू कामयाब हो गया है, तू जन्नत के अंदर पहुँच चुका है। हजरत साद ने जब ये बात सुनी तो खुशी से दौड़ पड़े और कहने लगे कि जिसके लिए मैं लड़ता रहा, जिसके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी, मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, आज मुझे वो मकाम मिल चुका है। हजरत साद सुलैमी लड़ते लड़ते उस जंग के अंदर शहीद हो गए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अपनी गोद के अंदर उठाया हुआ था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों में आंसू थे। फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराने लगे, फिर उसके बाद चेहरा फेर लिया। हजरत अबू लुबाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर तो है, क्या बात है कि आपके अंदर हमने आज 3 बातें देखी। पहले आप रोने लगे, फिर उसके बाद आप मुस्कुराने लगे, आखिर में आपने चेहरा मोड़ लिया, ऐसी क्या बात है? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं रोया अपने सहाबी की जुदाई पर, इसकी कुर्बानी पर मैं रोया हूँ कि इसकी तो शादी हुई थी, इसने अपने सारे जज्बात एक तरफ रख के अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर कुर्बान हो गया है, इसने अपनी जान पेश कर दी है। मैं इसकी जुदाई पे रोया हूँ और मैं मुस्कराया इसलिए था कि दुनिया के अंदर गरीब था, इसके पास कुछ नहीं था, इससे कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज मैंने जन्नत के अंदर इसका मंजर देखा, इसका मकाम देखा, ऐसा इसका बुलंद मर्तबा देखा तो मुझे खुशी आई। मैं इस वजह से मुस्कराने लग गया और मैंने चेहरा इस वजह से मोड़ा कि मैंने देखा कि इस सहाबी के लिए जन्नत से हूरें आ रही थी, दौड़ती हुई इसके इस्तकबाल के लिए आ रही थी। जब वो दौड़ने लगी तो उनकी पिंडलियों से कपड़ा हटा, मैं मोहम्मद शर्म की वजह से मैंने चेहरा मोड़ लिया और फरमाया कि जाओ साद की बीवी को कह दो कि अब साद जन्नत के अंदर पहुंच चुका है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो चुका है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे जो हर वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबा हैं कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, कि अल्लाह ने मुझे चुना है, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। तो ये सहाबा इकराम ये रब का इंतखाब है। सहाबा इकराम ये मेरा और आपका इंतखाब नहीं, बल्कि ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को एक ही जगह से जमा नहीं फरमाया, ऐसा नहीं किया कि मक्के से सबको जमा किया, मदीने में ला के रख दिया, नहीं नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नज़र डाली। जहाँ भी कहीं हीरा या मोती नजर आया, अल्लाह ने उसको उठाया और अपने महबूब की झोली के अंदर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फारिस पे नजर डाली तो फारिस के अंदर हजरत सलमान फारसी
चमकते हुए हीरे की तरह नजर आए। अल्लाह ने इनको वहां से उठाया और महबूब के कदमों में पहुंचा दिया। और जब यमन पे नजर डाली, हजरत अबू हुरैरा नजर आए। अल्लाह ने इनको वहां से उठाया और अपने महबूब के गुलामी के लिए मुंतखब फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हबशे पे नजर डाली तो हबशा के अंदर एक हीरा चमकता हुआ मोती की तरह हजरत बिलाल नजर आए। अल्लाह ने इनको वहां से उठाया और आका की गुलामी के लिए इसको मुंतखब फरमा दिया। हजरत बिलाल तो वो है कि जब इस्लाम नहीं लाए थे, कलमा नहीं पढ़ा था, इनका रंग काला था, कोई इनसे हाल पूछने वाला नहीं होता था, गरीब थे। जब इस्लाम लेकर आए, आका की खिदमत के अंदर आए, आका की सोहबत में बैठे, रब ने ऐसा रंग लाया कि बिलाल चलते तो मक्के की गलियों में थे, लेकिन इनके कदमों की आवाज़ जन्नत के अंदर जाती थी। रब ने उनका मकाम ऐसे बुलंद कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा है, ये रब का इंतखाब है, मेरा और आपका इंतखाब नहीं, बल्कि अल्लाह ने एक एक सहाबी को चुनकर आका के कदमों के अंदर पहुंचाया है। और ऐसे सहाबा दिए जो अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे। तकलीफ आई, पीछे नहीं हटे, दीन को नहीं छोड़ा, जितनी भी बड़ी मुश्किलात आती थी, लेकिन हर वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे। हजरत ज़ियाद बिन सकन है, ग़ज़वा उहद का मौका है, काफिरों का बड़ा जोर था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे पर कि नऊज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बुलाया और ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जिसको मैं अपनी तलवार दूं, वो इसका हक अदा करे। हजरत ज़ियाद बिन सकन कमज़ोर से सहाबी हैं, खजूर खा रहे थे, खड़े हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तलवार का हक मैं अदा करूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ियाद देख लो, वादा पूरा करना है। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान रहेगी, मैं दुश्मनों को आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपनी तलवार दे दी। अब हजरत ज़ियाद बिन सकन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे के बाहर खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं। उधर काफिरों ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। हजरत ज़ियाद बिन सकन को पहला तीर लगा, खून निकलना शुरू हुआ, दूसरा तीर लगा, इसी तरह 70 तीर लगे। इनके सारा जिस्म तीरों से भर गया, ये बेहोश होकर नीचे गिरे। सहाबा इकराम ने इनको वहां से उठाया और जख्मियों के खैमों में पहुंचा दिया। हजरत ज़ियाद बिन सकन को जब वहां पर होश आया तो हजरत ज़ियाद बिन सकन ने पूछा कि मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? मैं तो आका के खैमे के बाहर खड़ा था, मैंने तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया? तो सहाबा ने बताया, आप बेहोश हो गए थे, हम आपको इसलिए यहाँ पर ले आए थे। हजरत ज़ियाद बिन सकन कहने लगे, मुझे जल्दी वापस ले जाओ, आका की खैमे के बाहर खड़ा कर दो, मैंने आका से वादा किया था, अगर इस हाल में मेरी मौत आ गई तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा? सहाबा ने कहा कि आपके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, आप कैसे खड़े होंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है, लेकिन मुझे किसी चीज के सहारे पे खड़ा कर देना। तो हजरत ज़ियाद बिन सकन को लेकर आए, बांस के सहारे पे इनको खड़ा कर दिया। ये खड़े हैं, काफिरों ने फिर तीर बरसाना शुरू कर दिए। पहले भी जिस्म पर 70 तीर लगे हुए थे, फिर जब तीर दोबारा लगना शुरू हुए, हत्ता के 93 तीर इनके जिस्म पर लग गए, सारा जिस्म तीरों से भरा हुआ है, ये नीचे गिरे। जोर से आवाज आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमे से जल्दी से बाहर आए, देखा कि हजरत ज़ियाद बिन सकन नीचे गिरे हुए हैं, सारा जिस्म पे तीर लगे हुए हैं, सारा जिस्म लहूलुहान है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका सर उठाया, अपनी गोद में रखा और इनकी ये हालत देखी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी आंखों पे हाथ फेरने लगे, आंखें बंद करने लगे। हजरत ज़ियाद बिन सकन की आंखें निकली, कहा, या रसूलल्लाह, मेरी आंखों से हाथ तो हटाएं। आखिर में
اپنے دیدار سے تو مجھے محروم نہ کریں، مجھے اپنا دیدار تو کرنے دیں۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ زیاد تو کیا عمل لے کر آیا ہے، میں اتنا تو کہوں گا کہ اے اللہ آخر میں تیرے محبوب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ پورا کر چکا ہوں، قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ میں نے آپ سے وعدہ پورا کیا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا عمل لے کر آیا ہے، میں اتنا کہوں گا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان تو دے دی تھی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ ایک وقت تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ کس کی بچی ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بچی کھڑی تھی اپنے گھر کے باہر، اداس کھڑی تھی، پریشان کھڑی تھی، اس کو اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، یہ شہید کی بیٹی ہے۔ تو پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے کہ جس نے اپنے جسم پر 93 تیر تو کھا لیے تھے لیکن دشمنوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو چن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پہنچایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ تم میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو کہ یہ تم میں سے چنے ہوئے ہیں، یہ تم میں سے بہتر ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، میرے صحابہ کو گالی دے گا، فرمایا کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی ہی پیروی کرنی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان اس طرح لاؤ کہ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی، یہ صحابی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، سارے نمازی جمع ہو جائیں، سارے حاجی جمع ہو جائیں، سارے روزے دار جمع ہو جائیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے اندر ہیں، جنگ بھی شروع ہے، ایک آدمی آیا مسلمان نہیں ہے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں پہلے کلمہ پڑھوں یا جہاد شروع کر دوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پہلے کون سا عمل کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد جہاد شروع کر دے۔ اس نے ایسا کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، پھر جہاد میں چلے گئے، لڑتے لڑتے تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عامل قلیلا واجر کثیرا، فرمایا کہ اس نے عمل تو بہت ہی تھوڑا کیا لیکن اجر بہت ہی اس نے پایا۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر سارے نمازی جمع ہو جائے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ایسا کہ اس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ کوئی حج کیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ عمل تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ پایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے نمازی جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے روزے دار جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے ولی بھی جمع ہو جائیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں، بہت ہی بلند ہستیاں تھیں اور ان کو دنیا کا شوق نہیں تھا، یہ ہر وقت
दीन के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे। हजरत मुसअब बिन उमैर हैं, ये इस्लाम लाने से पहले बड़े मालदार थे, बड़ी दौलत थी इनके पास। ये जो सूट पहनते थे, रोजाना नया सूट होता था और ये आम कपड़ा नहीं पहनते थे। 400 दिरहम 200 दिरहम का इनका सूट हुआ करता था, यानी आज के दौर में लाखों रुपए का ये सूट पहनते थे और रोजाना नया सूट होता था जो एक बार पहन लेते, दोबारा कभी उसको नहीं पहनते थे। और जूते भी इनके कोई आम जूते नहीं होते थे, यमन से इनके जूते बनकर आया करते थे। लेकिन ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और कहा, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? तू तो शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने वाला है, तू तो बड़े उम्दा लिबास पहनता है, बड़े अच्छे अच्छे खाने खाता है, लेकिन यहाँ तो तुझे भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फटे हुए लिबास भी पहनना पड़ेगा। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह बस आप कलमा पढ़ाओ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, ये मुसलमान हो गए। तो इनकी वालदा को पता चला, वो मुसलमान भी नहीं है, कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब हजरत मुसअब बिन उमैर अपने घर के अंदर आए, माँ ने पूछा कि वाकई तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? कहा, जी अम्मी मैंने उसका कलमा पढ़ लिया। कहा कि तू या उसका दीन छोड़ दे, ये इस घर से चला जा। तो कहने लगे कि अम्मी मैं उसका दीन नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस घर को छोड़ सकता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ तो बड़ी अयाशी के साथ जिंदगी गुजार रहा था, शहजादों की तरह जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ तुझे भूख होगी, प्यास होगी। कहा, मुझे भूख मंजूर है, प्यास मंजूर है, लेकिन उसका मैं दीन नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा, ठीक है, तेरे पास जो भी चीज़ है यहाँ रख के जा, यहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं जाएगा। सब चीज़ें उसने वहाँ पर रख दी। जब निकलने लगे, माँ ने कहा, एक मिनट रुक जाओ, ये जो तुमने लिबास पहना हुआ है, ये लिबास भी इस घर का है, इस घर से तो कोई चीज़ लेकर नहीं जाएगा। तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने वो कपड़े भी उतार दिए और माँ को कहने लगे कि मुझे जिस्म छुपाने के लिए तो कोई कपड़ा दे दो। माँ ने 2 टाट के कपड़े फेंके, फटा हुआ कपड़े थे। तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनको पहना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर आ गए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हजरत मुसअब बिन उमैर आ गए। सहाबा ने उनका यह मंजर देखा कि जिस्म पर फटा हुआ लिबास है, जो चंद दिन पहले शहजादों की तरह मक्के की गलियों में घूमता था, आज इसके जिस्म पर फटा हुआ लिबास है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको मदीना के अंदर रवाना फरमा दिया कि वहाँ जाओ, लोगों को दीन की दावत दो। अब ये मदीने के अंदर हैं, जो पहले शहजादों की तरह घूमता था, अब एक एक के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए। ग़ज़वा उहद का मौका आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लोगों को झंडे दिए, उनमें एक झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में दिया। और ये झंडा हासिल करना ये भी बड़े एजाज की बात होती थी, और काफरों का टारगेट यही झंडे वाला होता था, क्योंकि जब झंडा गिर जाता तो मालूम हो जाता कि इनको शिकस्त हो गई है। तो काफरों का यही टारगेट होता था कि झंडे वाले को नीचे गिराएं, ताकि इनके हौसले टूट जाएंगे, इनको शिकस्त हो जाएगी। हजरत मुसअब बिन उमैर खड़े हैं, झंडा इनके हाथ में है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, इस्लाम का झंडा है, लेकिन मजबूती के साथ पकड़ के खड़े हैं। और उधर एक काफिर आया, उसने आके हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में तलवार मारी। हाथ टूटा नहीं, हड्डी टूटी नहीं, बल्कि कट कर नीचे गिर गया और झंडा गिरने लगा। लेकिन हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपनी हाथ की परवाह न की, दूसरे हाथ से झंडा पकड़ लिया। फिर एक और आया, उसने आके तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया, वो भी नीचे गिर गया। अब जो थोड़ा सा हाथ बचे हुए थे, हजरत मुसअब बिन उमैर ने फिर भी झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, अपने सीने से लगा लिया, उनको मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक काफिर आया, उसने आके तीर मारा, हजरत मुसअब बिन उमैर नीचे गिरने लगे, झंडा भी नीचे गिरने लगा। हजरत अली ने झंडे को उठा लिया, हजरत मुसअब बिन उमैर भी शहीद हो गए। कुछ देर के बाद जब जंग खत्म हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
शुहदा के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। देखा कि एक आदमी है, बाल भी बिखरे हुए हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके ऊपर गए और इनका चेहरा उठाया, अपनी गोद में रखा, आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम इसको जानते हो, ये वो शख्स है जो उम्दा लिबास पहनता था, इसके कपड़ों पर मिट्टी भी नहीं लगती थी। आज तुम इसकी हालत देखो। जब उसको कफन देने लगे, कफन दे रहे थे, वो कफन पाँव के नीचे अगर करते, पाँव छुपाते तो सर नजर आता, सर छुपाते तो पाँव नजर आते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनके पाँव पर घास डाल दो, सर छुपा दो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे सहाबा, देखो एक वक्त वो भी था, ये मक्का की गलियों में शहजादों की तरह घूमता था, आज हमारे पास इतना भी कपड़ा नहीं कि इसका जिस्म छुपाया जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, तुम गवाह रहना, मैं मोहम्मद इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह मैं भी इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, हम तो ये समझते हैं कि कामयाब वो शख्स है जिसके पास दौलत हो, गाड़ियाँ हो, बंगले हो, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबा थे, उनको पता था कि कामयाबी दीन के अंदर है। वो हमें यही सबक देकर गए हैं कि ये दुनिया आर्जी है, अगर कामयाबी चाहते हो तो दीन पर चलना होगा, दीन पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।